8ની અંદર સ્વાપોથી પૂરવાની છે, એટલે કે દરેક વિદ્યાર્થીએ સ્વાધ્યાય પોથી હવે લઈ લેવાની રહેશે. જેની પાસે અત્યારે સ્વાધ્યાય પોથી નથી તે સ્વાધ્યાય પોથી લઈ લેશે, અને અત્યારે નથી તે રફ નોટમાં લખશે. અને અહીંથી જે કાંઈ તમને હોમવર્ક આપવામાં આવે છે એ તમારા ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેવાનું રહેશે. અને અહીંથી સ્વાધ્યાય પોથી પુરાવું છું એના ફોટા પણ એમાં મોકલી દેવાના રહેશે. તો તમે બધા એ સ્વાપોથી નથી લીધી તો કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયાથી જે કાંઈ હું પુરાવું છું એ અત્યારે તમે રફ નોટમાં લખજો અને પછી સ્વાધ્યાય પોથી લઈ પૂરી લેજો. પણ હવેથી સ્વાધ્યાય પોથી લઈ લેજો. અને હવેથી આપણે સ્વાપોથીમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પહેલો બીજો પાઠ ચાલી ગયો છે, એટલે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ આપણે પહેલો બીજો પાઠ છે એ પૂરી લેવાનો રહેશે. તો ચાલો હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરીએ. તો આ છે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીનો પહેલો પાઠ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1માં એવું કહેવામાં આવ્યા છે કે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिख दिए गए એટલે કે બોક્સમાં લખવાના રહેશે. તો આપણે જોઈએ કે પહેલો પ્રશ્ન એવું કીધું છે કે હમ દુનિયાની ખાલી જગ્યા की मर्जी से आए हैं. તો આપણે દુનિયામાં કોની મરજી છે આવ્યા? તો કે ખુદાની. તો પહેલા વિકલ્પમાં બી ઓપ્શન આવે છે, જે મેં અહીંયા બોક્સમાં લખેલો છે. તો આપણે એકવાર ફરીવાર જોઈ લઈએ કે હમ દુનિયા મેં ખુદા કી મરજી સે આયે હે, એટલે પહેલા ઓપ્શનમાં બી આવશે. પછી હમે ખુદા કી ખાલી જગ્યા સે શરીર ઓર પ્રાણ મિલે હે, તો કે એમાં શું આવશે? એ રહેમત, હિમ્મત, મહેનત કે કિસ્મત. તો કે હમે ખુદા કી રહેમત से शरीर और प्राण मिले है. तो मैं बीजाમાં એ ઓપ્શન આવે છે, જે મેં અહીંયા બોક્સમાં એ ઓપ્શન છે એ લખેલો છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે પ્રશ્ન 3, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे. तो क्या नज़र, खबर, डगर के दुआ? तो કે નજર. તો ત્રીજા ઓપ્શનમાં આવશે બી, જે મેં અહીંયા બી લખેલો રહેશે. હવે આપણે પ્રશ્ન પહોંચ્યા છીએ 4. તો કે ખુદા ચાહે તો હર ખાલી જગ્યા કો ટાલ સકતા હે. તો એમાં શું આવશે? તો કે બી, ખુદા ચાહે તો હર આફત કો ટાલ સકતા હે. તો અહીંયા મેં બોક્સમાં લખ્યું છે બી. હવે આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે અહીંયા પૂરો થાય છે. એકવાર ફરી પ્રશ્ન 1 છે એ જોઈ લઈએ કે હમ દુનિયા મેં खुदा की मर्जी से आए हैं, हम खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं. कवि चाहता है कि खुदा हम पर अपनी नज़र रखे. खुदा चाहे तो हर આફત કો ટાળ સકતા હે. એટલે પહેલામાં બી, બીજામાં એ, ત્રીજામાં બી અને ચોથામાં બી. તો આપણો પ્રશ્ન 1 છે અહીંયા પૂરો થાય. હવે આવ્યા આપણે પ્રશ્ન 2. તો કે कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. તો આપણને અહીંયા કોષ્ટક આપેલો છે, એ કોષ્ટકમાંથી નીચેની આપેલી ખાલી જગ્યા છે આપણે પૂરવાની રહેશે. તો આપણે જોઈએ ખાલી જગ્યા પહેલાં 1. તો કે તું હે બડા ખાલી જગ્યા તું બક્ષિશ કર. તો પહેલાંમાં શું આવશે? તમને બધાયને ખબર છે, મહેરબાન. તું હે બડા મહેરબાન તું બક્ષિશ કર. તો આપણે પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખશું મહેરબા, એટલે મહેરબા. જે આવી રીતના તમારે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું રહેશે. એટલે પહેલાંમાં આવશે મહેરબા. હવે બીજી ખાલી જગ્યા, हम किस हाल में है इसकी तुम खाली जगह रखना. तो શું આવશે એમાં? હમ, સર કે ખબર? તો કે એમાં આવશે ખબર. તો અહીંયા આપણે શું લખશું? ખબર. એટલે કે હમ કિસ હાલ મેં હે ઉસકી તુમ ખબર રખના. હવે આપણે આવશે પ્રશ્ન 3. તો કે તું ચાહે તો ખાલી જગ્યા રખે. તું ચાહે તો હમે રખે. તો એમાં શું આવશે? હમે. તો આપણે આમાં લખશું હમે. એટલે તું ચાહે તો હમે રખે. એટલે આપણે પહેલી ખાલી જગ્યા મહેરબા, બીજીમાં ખબર અને ત્રીજીમાં હમે. તો ચોથામાં આવશે તેરે આગે ઝુકા કે સર હમ ખડે હે.
तो આપણે ફરીવાર જોઈએ કે તું હે બડા મહેરબાન તું બક્ષિશ કર, એટલે પહેલામાં આવશે મહેરબાન, हम किस हाल में है इसकी तुम खबर रखना। तो હવે આપણે પ્રશ્ન 2 ફરીવાર જોઈએ તો કે તું હે બડા મહેરબાન એટલે પહેલી ખાલી જગ્યામાં મહેરબાન આવશે, हम किस हालत में है इसकी तुम खबर रखना એટલે બીજામાં ખબર આવશે, ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં તું ચાહે તો हमें रखे એટલે हमें આવશે, ચોથી ખાલી જગ્યા तेरे आगे झुका के सर खड़े है हम એટલે પાંચમામાં આવશે सर। तो હવે આપણે પહોંચ્યા પ્રશ્ન 3 કે सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। तो कि ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान दयालु है। तो એમાં બ આવે છે એ મેં અહીંયા લખ્યું છે અને વાક્ય પૂરું કર્યું છે। ફરીવાર જોઈએ કે ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान और दयालु है। એટલે આપણે અહીંયા જે સવાલ આપ્યો છે એનો આપણે અહીંયા જવાબ છે એ પૂરો કર્યો છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો એમાં જ છે પ્રશ્ન 2 इस ईश्वर के એટલે કે हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो એમાં પણ તમારા વાક્ય છે એ ક્યાં જોડી દેવાનું છે તો કે આ વાક્ય છે અહીંયા क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है એમ લખી નાખવાનું રહેશે। ફરીવાર જોઈ લે તો કે हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ પ્રશ્ન 4। તો કે પ્રશ્ન 4 માં આપણે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય મેં લખવાનું કીધું છે। તો કે એમાં આપણે પ્રશ્ન પહેલો છે એ વાંચીએ તો કે कवि ईश्वर से बख्श के लिए क्यों कहते हैं। तो कि कवि ईश्वर ने बख्श लेने के लिए क्यों कहते हैं। तो कि कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। तो फरीवार एक बार આપણે જોઈ લઈએ તો કે कवि છે એ ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं अथवा क्षमा करने के लिए कहते हैं। तो હવે આપણે એકવાર હું ધીમે ધીમે બોલું છું તમે બધાએ લખી લેવાનું રહેશે। તો અહીંથી હું બોલું છું તમારે લખવાનો રહેશે। તો કે ईश्वर कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। फरीवार बोलूँ छूँ कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। जे हूँ अहीं अंडरलाइन करूँ छूँ ये तमारा प्रश्ननो जवाब है। तो कि कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात उसे क्षमा करने के लिए कहते हैं। हवे आपणे जोईए प्रश्न 2। तो कि प्रश्न 2 में एवं कहवा कीधुं छे कि ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो कि ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो कि ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तो फरी बार बोलूँ छूँ ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। फरी बार ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। तो एक बार जे बोलूँ छूँ तमे धीमे धीमे लखी नाखजो। तो कि कवि ईश्वर के सामने अपना आपणे बीजो प्रश्न था। तो कि ईश्वर से हमें यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। हमें आपणे प्रश्न 3 जोईए। प्रश्न 3 में एवं कीधुं कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो कि कवि ईश्वर के सामने
अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। तो कि कवि ईश्वर के सामने, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। सिर झुकाकर खड़े हैं। હવે આવ્યો છે પ્રશ્ન 4। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर છે એ हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो कि ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। फरी बार बोलूँ छूँ, ईश्वर हर आफत को, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है। ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। અહીંયા પ્રશ્ન 4 છે આપણો પૂરો થાય છે। હવે પ્રશ્ન 4 છે એકવાર આપણે આખો ફરીથી જોઈ લઈએ। तो કે कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो कि कवि ईश्वर से अपने गुनाहों, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। हवे प्रश्न 2, तो कि ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो कि ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हवे प्रश्न 3, कवि ईश्वर से सामने कैसे खड़े हैं? तो कि कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। हवे प्रश्न 4, तो कि ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो कि ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। हवे आपणे पहुंचा प्रश्न 5। तो हवे आपणे प्रश्न 5 में एवुं कीधुं छे, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लखवाना छे। तो एमां आपणो प्रश्न पहलो, कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? तो कि कवि ने किसे मालिक कहा है और क्यों कहा है? तो एनो जवाब छे कि कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी की है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। तो आ प्रश्ननो जवाब छे ए हवे हूँ धीरे धीरे बोलूँ छूँ, तमारे लखवानो रहेशे। तो कि कवि ने ईश्वर को, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है, मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश, क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, उसी के है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। तो एक बार आपणे फरी जोई लईए। तो कि कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। हवे आवे छे प्रश्न 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो कि तमे बधा भगवान ने केवी रीतने प्रार्थना करो छो? तो कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर लेते हैं। तो हवे आपणे જોઈએ કે પ્રશ્ન 2 છે એનો હું જવાબ ધીરે ધીરે બોલું છું, તમારે લખવાનો છે કે हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में है उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे, उसकी वह हमेशा खबर लेते रहे।
તો હવે છે પ્રશ્ન 2, એકવાર હું ફરીવાર બોલી જાऊँ छूँ। तो कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है, लोग किस हालत में है, इसकी वे हमेशा खबर लेते हैं। लोग किस हालत में है, वे हमेशा खबर लेते, इसकी वे हमेशा खबर लेते हैं। तो प्रश्न 5 है एमां प्रश्न 3 है ये हूँ तमने होमवर्क में आपू छूँ अने प्रश्न 6 नो पेलो है ये पण हूँ तमने होमवर्क में आपू छूँ। एमां एवुं कहेवामां आव्युं छे कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो कि जेम आपणे अलग अलग धर्म होय छे, हिंदू, मुस्लिम, सीख, ईसाई, तो कि आपणे हिंदू होय ई मंदिर में जाइए, मुस्लिम होय ई मस्जिद में जाए, पछी तो कि सीख गुरुद्वारा एवी रीतने जे अलग अलग धर्मना लोको होय छे ई पोताना भगवानने प्रार्थना करवा माटे क्यां क्यां जाय छे ई तमारे लखवानुं छे। दाखला तरीके आपणे बधा हिंदुओ प्रार्थना करवा माटे भगवानना मंदिरे जावीए छीए, मुसलमान छे मस्जिद में जाय छे, एवी रीतने तमारे आमां लखवानुं छे। हवे तमारे आवे छे प्रश्न 6 एनो पहलो छे कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो कि तमारा बधाना मत प्रमाणे सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? तो आपणे बधाने खबर है कि आपणा मत प्रमाणे सृष्टि पर सर्वोपरि ईश्वर से। और शू काम? तो कि ईश्वरे ज आ बधुं रच्युं छे। ईश्वर की कृपा से हमें प्राण मिले हैं, शरीर मिला है, उनकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है। वो हमारा मालिक है, यह धरती और आकाश उनके है, वो लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो ये बधुं तमारे तमारा मत प्रमाणे आ प्रश्न 6 में छे ए लखवानुं रहेशे। ए तमारे होमवर्क में छे अने आ एनी पहेला तमारे प्रश्न 1, प्रश्न 2 अने प्रश्न 3 एटले के प्रश्न 1, प्रश्न 2 अने प्रश्न 3 ए तमारे रफ नोट में लखी नाखवानुं रहेशे। अने रफ नोट में लखी एना फोटा अने स्वाध्याय पोथीना फोटा तमारा क्लास टीचरना होमवर्क में सेंड करी देवाना रहेशे। तमारे बधाए होमवर्क में छे अने आ प्रश्न तमने आपेलो छे आजे कि प्रश्न 3, प्रश्न 5 अने प्रश्न 6 ए तमारे स्वापोथी में ज पूरवानो छे। एटले स्वापोथीना अने रफ नोटना 2 फोटा तमारे क्लास टीचरना व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करी देवाना रहेशे। हवे मळीशुं आपणे आवता लेक्चर में, त्यां सुधी आवजो अने बधायनुं होमवर्क थई जावुं જોઈએ અને હોમવર્ક છે એ તમારે ક્લાસ ટીચરના ફોનમાં રેગ્યુલર મળી જવું જોઈએ। તો હવે બધાએ જેણે સ્વાધ્યાય પોથી નથી લીધી એ લઈ લેજો, આવતા લેક્ચરમાં હજી આપણે સ્વાધ્યાય પોથી જ પૂરવાની રહેશે। તો આવજો।